नमस्कार। एक और एपिसोड सिंप्लीफाइंग भारत के साथ मैं अंकित गुप्ता। आज एक ऐसे वीर योद्धा से हम मिलने आए हैं और उनकी आ, कहानी, उनकी जुबानी हम सुनने आए हैं। 25 साल पहले, लगभग यही महीना, मई जून जुलाई का महीना, एक युद्ध हम पे थोपा गया। एक भीषण युद्ध हम पे थोपा गया, जो कि एक अनरिटन एग्रीमेंट हमारी दोनों फोर्सेस के बीच में था। उसका एक वायलेशन थी। और ये इतने डिफ़िकल्ट टेरेन पे लड़ा गया कि इसमें 1:15 की रेशो हमें अपने रिस्पॉन्स में जो थी हमने असेस की। 527 वीर जवान, ऑफिसर्स, जेसीओ, अदर रैंक्स हमने खोए। इसी कड़ी में उस समय के 17 जाट के तत्कालीन तत्कालीन सीओ ब्रिगेडियर उमेश बाबा सर, इनके साथ हम आज अ, इनकी कहानी, हम इन्हीं की जुबानी सुनने आए हैं। और हम मिलेंगे ब्रिगेडियर साहब से, हम जानेंगे क्या ऑपरेशन था, क्या इसकी इम्पैक्ट था ग्राउंड पे, कितना टाइम और कितने चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े, और कितने वीर जवान उन्होंने अपनी बटालियन से खोए। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू। ब्रिगेडियर उमेश बाबा सर, वेलकम टू माय शो सिंप्लीफाइंग भारत सर। Thank you. हाउ आर यू सर? Fine, thank you. कैसे चल रही है रिटायर लाइफ सर? Nice and wonderful. तो सर, जैसे कि हम जानते हैं 25 साल इस युद्ध को हो गए। इसमें हमने 527 लगभग प्रीशियस लाइफ्स हमने अपनी खोई। आप ग्राउंड ज़ीरो पे थे। आपने इस फाइट में अपनी बटालियन के साथ लीड किया। हाउ डू यू परसीव दिस कॉन्फ्लिक्ट एज अ पर्सन हु वाज प्रेजेंट देयर एंड हु फॉट? सी, ये जो लड़ाई हुई थी 25 साल पहले, 1999, कारगिल की लड़ाई, ये मेरे जहन से कभी भी नहीं जाएगी। बिकॉज आई वॉज लीडिंग माई बटालियन एंड आई लॉस्ट 36 अदर रैंक्स इंक्लूडिंग 2 ऑफिसर्स। तो मेरे दिल में अभी भी ये गिल्ट है कि मेरे कमांड में इतने लोग की शहादत हुई। दिस यू आर टॉकिंग अबाउट 17 चार? Yeah. ओके। तो जो आप बोल रहे हो ये कारगिल, दिस वॉर ऑफ कारगिल, what I see, this was planned by General Musharraf, and with the aim to cut off National Highway 1 Alpha so that our, supplies towards Ladakh are stopped. He thought that by doing this, he would prevent us from sending supplies there ahead, and they will take revenge for the Sechin Glacier which we occupied in 1984. So he did not infiltrate his troops this time, which we always expected. During this time, the infiltration of militants takes place. But what he did was he sent regular troops in guise of militants, dressed up in black salwar kameez, showing that they were militants and army had no role in that. And they occupied the heights. They intruded into our territory and they did not infiltrate. Okay. Infiltration is generally from the nalas, and we were trying to cover only nalas that time. Okay. But he came and occupied those heights because there were wide gaps, between posts from, say, Mashko Valley to Batalik. There were gaps of about 10 to 20 kilometers between each posts. Okay. And those wide gaps could not be covered by troops because as you say, they say, the mountains eat away troops. So we had limited troops. We could only cover the main axis, which was leading on to our base. So he took advantage of this. And also, we had an unwritten understanding between Pakistan and India that during winters, some of the ports were very difficult to manage Okay. because the roads were blocked because of snowfall. And so it was an unwritten understanding between both the countries. They also used to withdraw some of the posts, and we also used to withdraw from some of the posts, so that the maintenance of those troops on that post
Otherwise, it's very difficult. So wasn't it the violation of Shimla Agreement? Was it this particular point which you are saying it's unwritten? Was it in the condition in the Shimla Agreement? No, it was not part of any agreement, but it was a sort of an unwritten understanding. Okay. Both sides used to withdraw during the winters, and we used to reoccupy during summers. So, for our benefit of our viewers, I just want to understand in the layman terms. Can you explain us the impact of this particular thing? How long was the stretch they covered? How deep they were in, and what was the impact on the ground about this operation? Which was See, shafted? when they intruded into our territory, at places they were 6 kilometers, at places they were 8 kilometers. So broadly, you can say 6 to 10 kilometers deep inside Deep they inside. had come inside. And how long was the stretch? The stretch was right from Zojila to Batalik. Batali. I mean, So that is around good about about 120 kilometers. 120 kilometers. Yeah. And they had formed at least 5 groups. Okay. And each group had about 15 subgroups. Okay. So small parties came and occupied these unheld areas. Okay. They did not attack any posts. Mhm. They only came and occupied unheld areas Okay. and sat there to interdict the National Highway 1 Alpha. Okay. That was the main aim, and probably Musharraf wanted to take revenge, because when we occupied Sechin and preempted Pakistan, We preempted, yeah. yeah, and they were not able to take back. Take back. So he thought that we also do the same thing, and it is difficult for anybody to attack and take back the post. But I think he underestimated the Response. strength of Response Indian in Army, Indian Army. and Indian Army, responded in a very violent manner and removed them from there. So I have heard it from somewhere. It is a division plus troops we employed there during the conflict. Yeah, of course, there was 8 Mountain Division which had come there, and like we were part of Corps Reserves, and good about with 3 battalions. So we were also under division. So it was division plus, and plus on the other side also, Batalik and other places also 3 div was there, deployed there. सर आप इस युद्ध के वक्त या इस युद्ध से जस्ट पहले जब कॉन्फ्लिक्ट इनिशियली हमें मई के बिगिनिंग में आने शुरू हुए, वेयर वर यू पोस्टेड एंड कैसे आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि टू मूव टुवर्ड्स दैट एरिया, और वर यू ऑलरेडी प्लेस्ड देयर और यू वर इन सम अदर पार्ट ऑफ द वैली? वेयर वर यू पोस्टेड एट? नहीं, हम ये 19 डिव सेक्टर में थे, नौगांव में, इन ए हाई एल्टीट्यूड एरिया, बिकॉज क्या समर्स जैसी आती हैं तो इन्फिल्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है मिलिटेंट्स की. ओके. तो जो बटालियन ऑलरेडी डिप्लॉयड है उसके पीछे हम और एक और टायर में डिप्लॉय हो जाते हैं, ताकि उनके बीच के कोई गैप्स हों तो उसको हम रोक सकें. दैट इज़ काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रूल. तो मैं नौगांव में अभी सिर्फ 15 दिन पहले, बिगनिंग ऑफ आई थिंक अप्रैल में ही गया था, और मे बी बाय मिडल ऑफ 10th of May, I was stationed there with all my 4 companies, with all my logistics, and waiting there for in counter infiltration role. We also had an encounter there with the militants, and in which 4 This was a militants time were- around March, April, This was around May. May beginning. May beginning. So you were placed at 19. 19 day to Nagaon sector. Northern sector. So जब आपको पता चला तो क्या मैसेज था आपके लिए? तो मैं एक्चुअली हम किसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हम नए आए थे, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था फॉर ए डिनर. Okay. So I was attending a party, there, and suddenly in the mess, I got a call from the GOC, GOC 19 Div, 19 day. Okay. and he told me, please, you are on 72 hours notice, and be ready to move to wherever location is told to you. Okay. So you be ready within 72 hours. I said fine. सर, इस मैसेज को मिलने से पहले कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की कुछ न्यूज़ आपके तक पहुंच रही थी? या हमको कुछ वेग न्यूज़ आती रहती थी कि भाई उधर कुछ हो रहा है, कोई उधर से उन्होंने कोई बम्बार्डमेंट कर दी है, कहीं हमारा एमुनेशन डंप बर्बाद कर दिया है, और वो फायरिंग हो रही है उधर, आर्टिलरी की एक्सचेंज ऑफ फायर. मेरे को कुछ ऐसी भनक थी. किस लेवल तक का आपने इमेजिन किया था कि ये
जो न्यूज़ है वो किस हद तक, मतलब कुछ आपको लग रहे थे कुछ इरेगुलर्स आए हुए हैं छोटे मोटे, या कुछ एक छोटे से एरिया में है ऐसा, मतलब क्या आपको आइडिया था, क्या हाँ, आपको मेरे सेंस को था कि इतना बड़ा उस ऑपरेशन? वक्त तो हमको यही लगा कि भाई कुछ मिलिटेंट्स वगैरह होंगे, और हमने वो हमको अगर भेजा भी तो हमको उधर भेजेंगे, जैसे हम भी इधर भी एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में डिप्लॉयड है, वहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा। तो उधर ज़्यादा हो रहा है तो शायद अभी हमको उधर मूव कर रहे हैं। तो ये इनिशियली तो हमने यही सोचा था। तो सर जब आपको मैसेज मिला ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 19 डिव के, उसके बाद आप अपने ट्रूप्स के पास गए होगे, क्या माहौल था, कैसे आपने कम्युनिकेट किया, और आपको 72 आवर्स का नोटिस, डिड यू मीट दैट, मतलब यू रीच देयर इन 72 आवर्स? या तो मैं एकदम अपनी पार्टी वगैरह छोड़ के मैं उधर चले गया अपने यूनिट में। मैंने सारे जो ऑफिसर्स जैसे उसको इकट्ठा किया, और जो पोस्ट में थे उनको टेलीफोन में मैंने लिया और उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, हमको मूव करना है टूवर्ड्स दराज कारगिल सेक्टर, एंड वी शुड बी रेडी टू मूव। और मेरे को पता था कि अगर 72 आवर्स में मूव करना है तो इतना टाइम नहीं था कि वो नीचे आ पाएंगे विद ऑल द स्टोर्स, क्योंकि मेरे को कम से कम 10 दिन लगे थे इनको स्टोर्स वगैरह ऊपर पहुंचाने के लिए। तो मैंने उनको बोला तुम सिर्फ 4 या 5 दिन का राशन लेके आना, और एमुनेशन और आर्म्स, and rest you leave everything there and come down. We will get our rations and all from there itself. So within 72 hours they were all concentrated down on the road head, and जब गाड़ियाँ आई हमारे को रात को, we were all ready to move. Okay. So you reached Dras sector on which date? Yeah, I reached Daraz sector. We started on 22nd from here. Okay, so And 22nd of May. हाँ, 22nd of May early morning. Okay. फिर 23rd को हम सोनामर्ग में रहे। फिर 24th को हम पहुंच गए मतायन। बताएं, ठीक फिर है। मतायन में मैंने अपने बटालियन को डिप्लॉय किया वहाँ पे, और मैं आगे ब्रिगेड कमांडर के साथ दराज में चले गया टू गेट माई ब्रीफिंग। कारगिल ब्रिगेड कमांडर? नो, दराज ब्रिगेड कमांडर, 56 ब्रिगेड वाज 56 देयर brigade, yeah. दैट टाइम। तो सर क्या टास्क दिया गया, क्या बताया गया आपको 56 ब्रिगेड सी कमांडर? उस टाइम 56 ब्रिगेड के अंडर पूरा मशको एंड दराज दोनों थे। ओके। तो हम जब 79 में ब्रिगेड के हिस्सा जब बन के आए हम उधर, तो उन्होंने पूरा मशको सेक्टर हमको 79 ब्रिगेड को दे दिया, और 56 ब्रिगेड के पास सिर्फ दराज सेक्टर रह गया। तो ये पूरा मशको सेक्टर हमको दे दिया था एज एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट ब्रीफिंग जो मेरी हुई थी, तो उन्होंने बताया ये देखो 4875 है सबसे ऊंची चोटी, और इसके पीछे पिंपल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे कुछ 6 से 7 मिलिटेंट आए होंगे। अच्छा। और तुम ऊपर जाओ और उनको गर्दन से पकड़ के नीचे ले आओ। हमने भी सोचा बड़ा आसान सा जॉब है, इसमें उधर कर रहे थे, इधर ये कर लेंगे इसको। पर जब मैंने अपने फिर भी मैंने सोचा कि भाई कम से कम एक कंपनी को मैं ऊपर भेजता हूँ, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनको मदद की तो ऊपर इनके पास मदद होगी। तो मैंने अपनी एक ये अपनी ब्रावो कंपनी मेजर पूनिया के साथ भेजी, ओके। और 28th को इन्होंने फर्स्ट दे एस्टैब्लिश्ड द कांटेक्ट। हाँ, दे एस्टैब्लिश्ड द कांटेक्ट। देयर वाज 2 पीपल हु वर सिटिंग देयर, दे फायर्ड एट अस एंड दे वेंट ऑफ। तो उसके बाद हमने 4.4540 एक जगह थी, वहाँ पे हमने अपना फर्म बेस बना लिया। ओके। अगली रात को एक और जेसीओ भेजा आगे, बिकॉज हमको कुछ पता नहीं था कितने आदमी हैं, कहाँ पे हैं। तो हम सिर्फ कॉन्टैक्ट करके ही जब वो फायर करेंगे तभी पता चल सकता है। तो फिर अगले रात को 29 को सूबेदार हरफूल सिंह अपनी पूरी प्लेटून लेके आगे जा रहे थे, और जैसे ही वो 0.4875 के नज़दीक पहुँचे, तकरीबन 100 मीटर दूर होंगे, तो उनके पास कम से कम 8 MMGs का फायर आया। ओके। वो एकदम घबरा गए कि भाई इतना फायर कहाँ से आ गया, इधर तो मिलिटेंट ढूंढने गए थे, इतने सारे फायर आए। वो तो एकदम उन्होंने डिप्लॉय किया अपने आप को, रिटर्न किया फायर, पर उनका फायर इतना ज़्यादा था कि हम आगे बिल्कुल मूव कर ही नहीं पा रहे थे। उसी वक्त ये सूबेदार अलॉन्ग विद 5 अदर जवान्स पूरे दे डाइड। ओके। देयर अबाउट 10 लोगों को गन शॉट वुंड्स हुए, और पूरी प्लेटून दाएं बाएं से होकर वापस आ गई फर्म बेस। पे। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, और मेरे को तकरीबन 24 घंटे लगे पता करने के लिए कि कितने बंदे मिसिंग हैं, क्या है। लास्ट में पता चला भी 6 पीपल आर मिसिंग, एंड देयर बॉडीज आर लाइंग देयर नेक्स्ट टू देयर पाकिस्तानी पोस्ट। So sir, that was the first time when you realized कि the magnitude of this Yeah.
conflict is not limited to 6 or 7 terrorists and all. Absolutely. So what was your immediate reaction? तो मैं तो एकदम घबरा गया था और मैं तो कमांडर को मैंने फ़ोन करके बताया। मैंने कहा सर मेरे को तो बोला था 6-8 बंदे उधर ऊपर बैठे हैं, इधर तो 8 MMGs से फायर आया इनके ऊपर एंड यू नो इट्स वेरी दिस मीन्स गुड अबाउट 30 पीपल आर देयर। people are there. और मैंने कहा ये MMG फीचर MMG जनरली टेररिस्ट वगैरह यूज नहीं करते मेरे ख्याल से। ये MMGs तो बहुत कम यूज़ करते हैं, लाइट मशीन गन्स होती हैं, ये तो मीडियम मशीन गन्स ये हैं। मशीन गन्स थे। और इतना टेरिफिक फायर आया कि उसी वक्त मतलब कुछ भी नहीं कर पाए ये लोग। तो क्या सर उस समय जब आपको ये पता चला इम्पैक्ट का, तो क्या आपकी कन्वर्सेशन अपने कंपनी कमांडर्स के साथ हुई? आपने कैसे इसको मतलब हाउ यू मैं फिर अगले दिन ऊपर गया, अपनी एक 10 आदमी प्रोटेक्शन लेके ऊपर गया, क्योंकि मेरे जवानों का मोराल एकदम लो हो गया था कि भाई अभी तो शुरुआत ही हुई है, एक JCO और 5 जवान बिल्कुल मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। मैं ऊपर गया कि ताकि इनका हौसला अफजाई करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने पूछा जाके कि भाई हाँ क्या हुआ, किसकी गलती थी? पहले तो कोई नहीं बोला कि गलती किसकी थी, तो फिर कंपनी कमांडर बोला कि सर मेरी गलती थी कि मैंने थोड़ा और जांच करना चाहिए था, तब जाना भेजना चाहिए था इनको, तो मेरी गलती थी। फिर कुछ उसके बाद JCOs आए कि नहीं सर हमारी भी गलती थी कि हमने सोचा कि सिर्फ इतने ही लोग हैं, तो हमको नहीं पता था इतने फायर आएगा, तो हमने ज़्यादा छानबीन नहीं करी, पेट्रोलिंग करनी चाहिए थी पहले हमको। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी की गलती नहीं थी तुम्हारी, तुम इधर डटे रहो फॉर्म बेस में और हम इसका बदला लेंगे। क्योंकि अगले दिन मैंने जब अपना पेट्रोल भेजा इन डेड बॉडीज़ को लाने के लिए विद वाइट फ्लैग, सो दैट जनरली क्या होता है कि वाइट फ्लैग में हमने डेड बॉडी वो दे डोंट फायर, तो बट दे स्टार्टेड फायरिंग एट दीज पीपल ऑल्सो। हाँ, तो फिर मैंने इनको बोला तुम रहने दो, मैं और कैजुअलिटीज़ नहीं लेना चाहता इस चक्कर में, तो हम इसको बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो डेड बॉडीज़ वहीं पड़ी रही और ये डेड बॉडीज़ बाद में रिट्रीव हुई थी आफ्टर माय ऑपरेशंस ऑन 10th जुलाई, जब 8 तारीख को मैंने जब कैप्चर कर लिया पूरा उसके अंदर। सो फ्रॉम 29th May to 10th July वो पड़े रही, पर लकीली जब बॉडीज़ नीचे आए मैंने अपने डॉक्टर को भेजा कि भाई देखो क्या हालत है इनकी, तो वो कहते सर अभी भी ठीक है, उनको स्नो थी ऊपर, तो अभी भी ठीक है, अभी भी इनको हम घर भेज सकते हैं इनको। तो उसी अगले दिन ही मैंने इनको श्रीनगर भेजा एंड दे वर सेंट टू देयर होम टाउन। लकीली आई एम लकी। सर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट इट वाज, बिकॉज आपको वहाँ पे भेजा जा रहा है ये क्या कि 6 से 7 टेररिस्ट हैं और these are the heights. I think I have visited that sector. So acclimatization का टाइम मिला या नहीं मिला, लॉजिस्टिकल सपोर्ट उस हिसाब से मिला या नहीं मिला, कितने प्रिपेयर आप थे या नहीं थे, तो कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग था अकोमोडेट कर पाना आपको कि जब आपको ये कह के भेजा जा रहा है कि 6-7 टेररिस्ट और वहाँ पे एक 30+ आप कह लीजिए कि MMG के साथ या और मे बी देयर माइट बी माइंस एंड ऑल, सो कैसे आपको अकोमोडेट करना कितना डिफिकल्ट जी, उसके बाद मैंने कमांडर को बोला, मैंने कहा सर अब तो मैं इस तरफ से तो जाऊंगा नहीं, अभी ये इतना बड़ा फीचर है, मेरे को पेट्रोल भेजूंगा चारों तरफ और देखूंगा किस तरफ इसकी वीकनेसेस है एंड देन आई विल मेक ए प्लान टू अटैक दिस प्लेस। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यू टेक योर ओन टाइम एंड तो मैंने पेट्रोल्स भेजे चारों तरफ। Sir, just to interrupt, who was the commander at time? Mohinder Puri, sir? No, Mohinder Puri was the GOC. GOC. It did, and commander was Brigadier R.K. Kakkar. Okay, okay. So उन्होंने कहा ठीक है, you take your own time and find out how much enemy is there. तो मैंने जब पेट्रोल्स भेजे चारों तरफ, तो उन्होंने मेरे को 3-4 दिन के बाद बताया कि भाई हमने 20 आदमी इधर चलते हुए देखे हैं काली ड्रेस में, दूसरी तरफ वाले थे उन्होंने भी बोला हमने 20 आदमी देखे। तो मैंने सोचा फिर 20 इधर 20 इधर 20 जहाँ पे हमको फायर आया है, तो कम से कम 70-80 आदमी तो हैं ही इधर। तो मैंने फिर कमांडर को बोला, मैंने सर 70-80 आदमी है, एक बटालियन नहीं इसको ले सकती, इसको कम से कम 3 बटालियंस चाहिए कैप्चर करने के लिए। तो उन्होंने अपने GOC को बताया, GOC ने कहा नहीं यार इतना कैसा हो सकता है। तो अगले दिन हमको हेलीकॉप्टर मिला मेरे को और कमांडर को, कि कमांडर वांटेड टू सी हिमसेल्फ कि भाई है ही वाकया कि नहीं। तो हम हेलीकॉप्टर के लिए दराज में गए, दराज से हेलीकॉप्टर ऊपर गया और जब नीचे देखने लगे तो छोटे छोटे डॉट्स हमको काले काले बंदे ऐसे दिखे कि पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो
क्योंकि उनके पास वो थे, मिसाइल्स थे, स्टिंजर मिसाइल्स। तो हमने हेलीकॉप्टर 5 किलोमीटर से ऊपर था, 5 किलोमीटर से तो छोटे छोटे दाने दिख रहे थे। तो कमांडर ने इन एग्जूबरेंस बोला कि थोड़ा नीचे ले जाओ, हम थोड़ा देखना चाहते हैं क्या है। तो पायलट नीचे ले गया, थोड़ा जैसे ही पायलट नीचे लेके गया, एक स्टिंगर मिसाइल सिर्फ 2 मीटर आगे हमारे से निकला। थैंक गॉड कि हम बचे नहीं, नहीं तो एक गोला हमारे पास लगता हम सब नीचे आते। उसके बाद एकदम पायलट ने ऊपर किया उसको, हेलीकॉप्टर को, और ऊपर हम वहाँ से निकल गए। दैट वाज अ मिस हिट। दैट मिस एंड कहते हैं ना कि जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जो गोली आपके नाम की लिखी है वही आपको लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो सर मतलब May end you are talking about 29th May. So in the first week of July तक हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा या ये इन्फिल्ट्रेशन कितनी बड़ी और कितनी लेंदी ये है। तो मतलब वी कैन मेक आउट फ्रॉम दिस। नहीं, अभी जैसे ऐसे मैंने बोला ना कि इसके बाद मैंने पेट्रोल्स भेजे, तो तकरीबन जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी इनको, तो तकरीबन मिडल ऑफ मे हो गया था, 15-16 ऑफ मे। So it was around, I think, 20th of May that we took a helicopter to confirm this information. तो उस पर जीओसी के पास अभी बटालियंस थी नहीं इतनी, तो उन्होंने कहा अभी रुको, आपको मैं बाद में जैसे ही मेरे पास बटालियंस और मिलेंगी मैं तब दूंगा, क्योंकि हमारे पास तो 17 जाट उन कुछ बटालियंस में से हैं जो बिल्कुल इनिशियली उन्होंने जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो दे रीच थे आई थिंक। हाँ, पहले तो ये 56 ब्रिगेड गई थी, फिर हम पहुँचे 79 वाले, हम उधर पहुँचे। तो हम मतलब 4-5 दिन का ही 4-5 उसका वो है सिर्फ दिन का डिफरेंस। पर शुरू में जो पहुंचे थे ना, उनको बहुत बुरी हालत हुई थी। 1 नागा, 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स, ये इनकी बड़ी बुरी हालत हुई थी। बिकॉज ये तो हम तो फिर भी एक्लेमेटाइज थे, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड में पहले ही पहले से थे थे। और इधर से एक्लेमेटाइज थे, हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये तो बेचारे उधर से काउंटर इंसर्जेंसी से आए थे श्रीनगर से, एंड उनके पास ना कोई हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग था और ना इनके पास कोई एक्लेमेटाइजेशन हुआ, और इनकी तो कैजुअलिटीज़ बीमारी से ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। और कुछ पता नहीं था कौन कहाँ पे बैठा है, कुछ नहीं पता। जिस पहाड़ी में जाते थे वहीं से फायर आ जाता था। तो शुरू में तो बहुत बुरी हालत थी। बाद में जब हमको थोड़ा पता लगना शुरू हुआ, हमारी आर्टिलरीज आनी शुरू हो गई, तो जब तक हमारा अटैक गया जुलाई 4 को, तब तक सारी चीज़ें अवेलेबल थी, हमारी जितनी डेफिशिएंसीज सब पूरी हो गई थी। तो मैं लकी था कि मेरे को काफ़ी टाइम मिला टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ। So sir, basically you were given to clear Mashko Valley and the heights of 4875 and Pimple Complex. So कितना time आपको in total लगा to clear them off? And how relevant these points were? The point was very, very relevant. Even the GOC said that it is more important than even Tiger Hill, Okay. because Tiger Hill was visible from the road, और ये मीडिया वाले सिर्फ उसी रोड के ऊपर ही होते थे, हम तो अंदर थे। पर दिस was overlooking Tiger Hill and the national highway. So that was very important. That's why GOC, when he planned his operations, टाइगर हिल का अटैक उन्होंने 3rd-4th को किया, 4th को किया, 3rd-4th नाइट, और हमारा अटैक था 4th-5th नाइट, साथ साथ अगले दिन, ताकि ये दोनों जगह एक साथ अटैक जाए और दुश्मन को रीएडजस्ट करने का या रीइंफोर्समेंट्स भेजने का मौका ना मिले। सर बट अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें इसमें, तो क्या ये प्लान इतना नाइव था, जनरल मुशर्रफ इतना नाइव आदमी था? एंड जैसे बाद में काफ़ी स्टोरीज आई कि इट वाज अ गैंग ऑफ 4, कमांडर 10 कोर, हिज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एंड नॉर्दर्न एरियाज जो कमांडर था FCNA। तो सर इतना नाइव प्लान था, और उसके बाद ये भी चीज़ें आई कि ये 89 से मिर्ज़ा असलम बेग को प्रेजेंट हुआ, फिर जहांगीर करामत साहब को पेश हुआ ये प्लान, एंड बेनज़ीर भुट्टो जी को वो सब ने रिजेक्ट किया आउटराइटली। इवन मतलब मुशर्रफ से पहले जो जनरल जहांगीर करामत है, उनकी टेबल पे प्लान था और वो बिल्कुल दे सेट असाइड दिस। सो ये कैसे आप इसको देखते हैं कि इतनी पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जो टॉप एक्सलेंस हैं उनके अपना आर्मी के, कि इतनी नाइव है? क्योंकि हमारी एयर स्ट्रिप एक ले में भी है, देन वी हैव अ थॉयस, देन वी हैव अ रास्ता फ्रॉम मनाली। सो रास्ता नहीं रुकता था सियाचिन का हमारा, तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये 1998 में आपको याद होगा कि मई में हमने अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, और एक हफ्ते बाद ही उसने पाकिस्तान ने भी कर दिया। तो पाकिस्तान ने अब सोचा कि हम तो भाई न्यूक्लियर पावर है,
पहले तो हमारे पास कन्वेंशनल सिक्योरिटी थी, अब कन्वेंशनल सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है, हम तो न्यूक्लियर पावर हैं। और पहले वाले जो कहते थे कि भाई क्यों रिजेक्ट कर दिया, कि भाई अगर हमने ये किया तो इंडिया विल रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली और पूरा राजस्थान वगैरह उस बॉर्डर में भी ऑल आउट वार हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो थी या ज़ियाउल हक थे, रिजेक्ट कर दिया। पर अभी ये बोलता है कि भाई इसने सोचा अब तो भाई हम न्यूक्लियर पावर हैं, अब तो ये इंडिया ऑल आउट वॉर करेगी नहीं, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये वहीं बैठ जाएंगे, ऊपर से तो हमको खदेड़ नहीं सकेंगे और नीचे बैठ जाएंगे जैसे हम सचिन में बैठे हुए थे। और फिर इनसे हम बोलेंगे कि भाई तुम हमको सचिन से थोड़ा सा उधर दो, हम इधर से तब खाली करेंगे। उसने ये सोचा, उसको ये नहीं पता था कि भाई हमारा रिएक्शन इतना ज़्यादा होगा। तो ऑल्दो वाजपेयी साहब ने यही बोला था कि ही नेवर इंक्रीज द एरिया ऑफ ऑपरेशन, और ये भी बोला था कि डोंट क्रॉस द बॉर्डर। पर और इसने मुशर्रफ ने क्या किया, इनको भेज तो दिया, पर इसके बाद सपोर्ट कोई नहीं था इनके पास कि भाई कोई एयरफोर्स सपोर्ट हो या कोई बहुत सारी आर्टिलरी सपोर्ट हो, बिकॉज़ वो हमारी टेरिटरी में थे। एंड दे वर सेइंग कि ये तो हमारे है ही नहीं, ये तो इनिशियली दे डिसऑन देम, झूठ बोल रहे थे ये तो पूरा। तो वो झूठ को सच बनाने के लिए इनको ये कुछ भी नहीं कर पाए। According to you, sir, was the civil leadership was on board with Musharraf or not? आई डोंट थिंक ये इसको Because Nawaz Sharif was meeting को- Vajpayee in Lahore and जो इनकी कंपनी कमांडर डायरीज बाद में मिली हैं, उसमें जो ये इन्फिल्ट्रेशन था ये नवंबर 98 से स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट। सो आई व्हाट इज योर टेक? मेरा मानना है कि इवन मुशर्रफ ने ये सोचा था ये तो भाई छोटा मोटा है, उसके बाद हम कर देंगे, ये ख़त्म होगा, इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी, और उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे और हम कुछ कंसेशन मांगेंगे सचिन में और ये ख़त्म हो जाएगा। और ये नहीं सोचा था कि हमारा रिएक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो तभी उन्होंने कोई सपोर्ट कुछ नहीं बोला, और जो झूठ बोला, एक झूठ को छुपाने के लिए उनको 10 झूठ और बोलने पड़े। So, sir, do you see it as a military intelligence failure or intelligence failure? इंटेलिजेंस फेलियर यस हमारा था डेफिनेटली, कि हमारा क्या था कि ये पता नहीं कर पाए। वैसे तो इन्होंने बिल्डअप जो किया था इन्होंने बड़ी स्मार्टली किया, कि अगले जो था इनका ये क्या बोलते हैं, जो नर्दर्न एरियाज के ट्रुप्स से सिर्फ उन्हीं को लिया इन्होंने, बाहर से कोई ट्रुप्स नहीं आए। नहीं तो बाहर से ट्रुप्स आते, गन्स आती, तो पता चलता कि भाई ये तो बिल्डअप हो रहा है। तो हमको इसलिए कुछ मालूम नहीं था। उसका प्लान शुरू में बड़ा अच्छा था एंड पूरा सरप्राइज किया उसने हमको। बट सर वो तब तक ही अच्छा था जब तक हमें पता नहीं। यस, सरप्राइज अचीव किया उसने, वो अच्छा था। एंड देन द शेफर्ड वेंट एंड ही गॉट टू नो। उसके बाद पर उसको ये नहीं पता था कि हम तो भाई एक के बाद एक बेचारे इतने मर रहे थे, पर फिर भी छोड़ा नहीं। मतलब हैट्स ऑफ टू माय जवान्स एंड यंग ऑफिसर्स हु लेड दीस अटैक्स एंड ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। कैसा पर्सनली आप फील करते हैं सर लूजिंग सो मेनी पीपल? यू एज अ कमांडिंग ऑफिसर इज यूजुअली अ फादर ऑफ द बटालियन, सो हाउ डू यू फील? मतलब सी जब मैंने कैप्चर कर लिया ना तो बहुत खुश हुआ था मैं कि भाई मेरे को एक टास्क मिला था, हमारी यूनिट को हमने पूरा कर लिया है। और मैंने अपने जीओसी को रिंग करना, तो रेजिमेंट को रिंग किया कि सर वी हैव कैप्चर्ड द एरिया एंड आवर फ्लैग इज फ्लाइंग ऑन दैट। वो एक बड़ा खुश हुआ। पर 2-3 घंटे के बाद जब मैंने देखा ना मेरे जवान बेचारे स्ट्रेचर में कोई आ रहा है, किसी की आँख फूट रखी है, किसी के हाथ ऐसे हैं, किसी की डेड बॉडी स्लीपिंग बैग्स में आ रही है, तब ये सारा जो मेरा खुशी थी ना उदासी में बदल गई। आई फेल्ट रियली बैड दैट व्हाट कॉस्ट हैव यू अचीव्ड दिस विक्ट्री। 36 जब मैंने काउंट किए, 2 ऑफिसर्स एंड 36 अदर रैंक्स, तो वाज टू मच फॉर मी टू बियर। एंड वो दुख अभी भी मेरे को रहता है इवन टुडे। So, sir, what lessons we have learned from this conflict to preempt or to give a response to another if any misadventure Pakistan will do again? What lesson do we? See, सबसे पहला तो है हमारा इंटेलिजेंस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो इंटेलिजेंस हमारा फेल हुआ, विच शुड नॉट हैपन अगेन एंड अगेन। हर बार हम यही बोलते हैं इंटेलिजेंस, पर उसमें कुछ खास मतलब होता नहीं है एक्शन।
अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रोन्स वगैरह आ गए हैं, तो अभी सर्विलेंस वगैरह ड्रोन्स के साथ हो रही है उधर। And now we are placed at the heights. हाँ, एंड वी आर प्लेस्ड एट द हाइट्स एंड इवन ड्रोन्स के साथ सर्विलेंस चल, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस चल रही है। एंड प्रॉब्ली हमारे जो दूसरे आईबी रॉ वगैरह वो भी अभी सतर्क है कि भाई ऐसा कुछ ना हो सके। दूसरी बात ये है कि हमको अपने हाई एल्टीट्यूड वॉर के लिए ना, इस एरिया के लिए वी मस्ट हैव इनफ रिजर्व्स जो कि ट्रेंड हो इस चीज़ के लिए। ये नहीं कि उठा के हमने सीआई ऑफ से निकाल के श्रीनगर से उठा के इधर भेज दिया बिना ट्रेनिंग के, बिना कपड़ों के, और जाओ भाई तुम इसके ऊपर। तो वो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इट मस्ट हैव डेडिकेटेड रिजर्व्स टू फाइट दीज वॉर्स। और तीसरा हमारा डेटरेंट इतना होना चाहिए कि पाकिस्तान कभी ज़रूरत ना करे ऐसी कुछ करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, लेसन्स हमने जो लर्न किए हैं। एंड अदरवाइज अदर्स आर टैक्टिकल लेसन्स आल्सो विच आर एट बटालियन लेवल एंड ऑल, वो मैं उसको टच नहीं करूँगा। मैं ये एक्चुअली सोचता हूँ कि हमने स्ट्रेटजिक ऑप्शंस इस लड़ाई के अंदर हमने एक्सप्लॉइट नहीं किए। एक ब्रिगेडियर जावेद हैं, उन्होंने डॉन मैगजीन पेपर में लिखा था एक आर्टिकल कारगिल के बाद कि इंडियन आर्मी ने कोई स्ट्रेटजिक ऑप्शंस अगर लिया होता तो पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी होती। उसका कहना था कि अगर हम स्कार्डू जो कि बेस था टू यू नो फॉर ऑल ट्रूप्स, एडम ट्रूप्स गोइंग टुवर्ड्स दिस प्लेस एंड इवन टुवर्ड्स सचिन, अगर हम उसके ऊपर कोई अपने ट्रुप्स भेजते, हेलीबॉर्न ट्रुप्स, उसको कैप्चर करते एयरफील्ड को, और उसके बाद बिल्डअप करते विद आवर डिवीजन साइज फोर्स, तो मतलब ये वैसे ही टूट जाते। मतलब इनके पास जो आगे जितने भी थे ना, हमको अटैक करने की भी जरूरत नहीं थी। ये सब के सब वैसे ही, बिकॉज इनके पास खाना पीना एमिनेशन कुछ नहीं पहुंचता, और ये वहीं खत्म हो जाते और छोड़ के भाग जाते। तो सर हमने क्यों नहीं लिए? मतलब फौज के सीनियर लेवल पे लेने का डिसीजन था या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन? ये सीनियर लेवल का डिसीजन तो है ही है, प्लस पॉलिटिकल कैबिनेट कमेटी। हाँ, मतलब जब तक बॉस से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, पर किसी ने बताया नहीं ये चीज़ एक्चुअली, या हो सकता है किसी ने सोची भी नहीं हो ये चीज़। वो उस टाइम तो यही सोचते थे भाई इनको निकालना है, इनको निकालना है बस। इंडक्शन ऑफ बोफोर्स को आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं इस वॉर में? Yes, induction of Bofors was a turning point because, and especially when they were firing in direct firing role, they were very good at direct firing role, Bofors, और कम से कम 50-75 मीटर नज़दीक तक वो तुमको फायर दे सकते थे। तो I definitely say Bofors were a force multiplier. So there was a one more question I want to ask, and it was coming from the book of ये खामोशी कब तक, जनरल शाहिद अजीज। डीजीएमओ पाकिस्तान में जब उनको बोला गया कि आप एक एनालिसिस करिए कि इन पोस्टों का रुकना हम कैसे रोक सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको सजेस्ट किया था कि एक और फ्रंट खोल दीजिए कश्मीर में। तो अगर इन केस ऐसा होता तो क्या हम प्रिपेयर थे उसके लिए? प्रिपेयर तो हम थे। कश्मीर में फ्रंट खोल के ये इनको, क्योंकि इनके पास भी ट्रुप्स की कमी है, ठीक है। कश्मीर में अगर फ्रंट खोलते, वी वर प्रिपेयर्ड। हमारे पास पहले ये 6 माउंटेन ड्यू उधर आई हुई थी, और भी रिजर्व्स नीचे पड़े थे, तो हम तैयार थे उसके लिए। और क्या हम ऐसा कुछ कर सकते थे इन कैजुअलिटीज को कम करने के? जैसे हमने स्कार्डू का बताया, क्या हम किसी और आईबी को, जैसे जो हमने 65 में किया, क्या मतलब कुछ ऐसा प्लान हो सकता था? एक्चुअली मैं इसलिए स्कार्डू का सिर्फ बोल रहा हूँ तुमको, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि इधर तक ही, इससे आगे नहीं बढ़ेगा ये ऑपरेशंस, इसी के अंदर करने हैं। तो ये स्कार्डू एक बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव था जो इसी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर था, और अच्छा मैसेज जाता अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते। एक चीज़ और है सर, जो हमने जनरल शाहिद अजीज जो बाद में डीजीएमओ रिटायर हुए थे और परवेश मुशर्रफ के काफ़ी क्लोज भी थे, उनकी एक बुक थी खामोशी कब तक, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 1000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान की तरफ हुई हैं, और कुछ बॉडीज़ लेने से मना कर दिया है, या कुछ उनकी जो रिकॉर्ड्स आप रखते हैं वो उन्होंने नहीं रखे डेलिबरेटली, बिकॉज दे डिडंट वांट टू टेल द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़। डू यू थिंक 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कैजुअलिटीज़ हुई होगी? 1000 देखो, हमारे 527 की शहीद हुए थे, तो मेरे को लगता नहीं 1000 तो थोड़ा ज़्यादा, मतलब इफ़ यू काउंट कि जो इंजर्ड है हो सकते हैं, पर अगर फैटल कैजुअलिटीज़ हैं
तो मेरे को लगता है उतना ही है इनका, 400-500 के बीच में ही था इनका भी। जियोग्राफिकली कुछ चेंज हुआ है सर ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, कुछ या एलओसी की सैंक्टिटी रही है? न एलओसी की सेंसिटी रही है, और छोटे मोटे एक्शंस चलते रहते हैं उधर कि क्योंकि वो जो भी थोड़ा डोमिनेटिंग फीचर है तुम अपने कब्जे में रखना चाहते हो, पर अभी तक तो शांति है, अभी कुछ नहीं, मतलब कोई उन्होंने कुछ ऐसे कभी ट्राई भी नहीं किया। Okay, sir, one last thing now. We are moving towards the end of this conversation. This was the only televised battle we have seen, my generation have seen. And during 99, during the same period, there was a cricket World Cup was going on. So usually क्या था कि मैं अपने फादर के साथ बहुत लड़ता था कि मैचेस देखने हैं, और दे यूज्ड टू से कि नहीं न्यूज़ देखनी है। तो जब भी हम न्यूज़ देखते थे सर, तो वो पालम एयरपोर्ट का वीआईपी, वो जहाँ पे आपके कॉफिन्स आ रहे हैं, बॉडीज आ रही हैं फौजियों की, तो बेसिकली लगता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। मैग्नीट्यूड हमें भी दिल्ली में बैठे इतना नहीं पता था। और उसके बाद एक अपील की गई थी ब्लड डोनेशन देने के लिए, तो ब्लड बैंक्स वर ओवर फ्लडेड, जो नेक्स्ट न्यूज़ आई कि लोग पीपल वर। तो सर ये टेलीवाइज बैटल में हमने विक्रम बत्रा का इंटरव्यू देखा, हमने विजन थापर का लेटर जो उन्होंने मॉम के लिए अपनी लिखा था, मेजर विवेक गुप्ता की बहादुरी, नायक दिगेंद्र टू राज रिफले। And we, as a C4F Citizen for Forces NGO, we have been celebrating and commemorating Kargil since then. यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए who are aspiring to join forces, आपका एक मैसेज सर? सी, मैं जो यूथ जो एस्पायर कर रहा है टू जॉइन फोर्सेस, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट ए करियर, इट्स अ पैशन, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, और पैशन मतलब तुम्हारे अंदर होना चाहिए वो, मतलब जज्बा टू सर्व द मदरलैंड and take risks. Attrition rate is very high these days, so any message or anything you, any See, reason attrition rate is not high, मतलब ऐसा है कि भाई मरना तो सबने एक दिन है किसी ने, ठीक है, कोई उसमें लाइन ऑफ फायर में आ गया तो मर भी जाएगा, तो शहीद होएगा, पर कम से कम शहीद होगा और किसी नाम उसका याद किया जाएगा। अगर नॉर्मल एक्सीडेंट में बंदा मर जाता है, कोई पूछता तक नहीं है उसको। तो इस तरह से अगर तुमको शहीदी मिलती है, आई थिंक इससे अच्छी कोई हो भी नहीं सकती। Thank you so much, sir. Thank you so much for your time coming on my show, sir. Thank you so much. Thank you very much.